رحیمیہ خان شیخ زید اسپتال ملازمین کا تنخواہیں نہ ملنے پر احتجاج ضلع انتظامیہ ایک بار پھر سے مذاکرات میں ناکام ہو چکی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ملازمین سے مذاکرات کے لیے احتجاجی دھرنے میں اس وقت موجود ہیں۔ رحیمیہ خان میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کے خطاب کے دوران ملازمین نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ ملازمین نے انتظامیہ کو 24 گھنٹوں کا ٹائم دے دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ عامر بھٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر بھٹی بتائیے گا، ملازمین نے انتظامیہ کو 24 گھنٹوں کا ٹائم دیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، رحیمیہ خان کی شیخ زید ہاسپٹل کے یہ 800 سے زائد ڈیلی ویجز ملازمین ہیں جن کا چھٹا روز ہے۔ دن رات اسی طرح سے یہ کیمپ لگا کے مصروف خانپور اڈا روڈ ہے جہاں پہ ان کا احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے دوسری مرتبہ آج جو ہے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جو ہے شیخ طاہر حسین یہاں پہ پہنچے تھے تاکہ مظاہرین سے جو ہے مذاکرات جو ہے کامیاب ہو سکے، ان کو منایا جا سکے اور جو احتجاجی دھرنا ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ لیکن جو مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تنخواہیں ملنے کے ساتھ ساتھ ان کو ریگولر بھی کیا جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایم ایس شیخ زید ہاسپٹل ڈاکٹر آغا توحید ان کو بھی معطل کیا جائے۔ اگر یہ چیزیں ان کی نہیں مانی جاتی تو کل 12 بجے جو ہے ریلوے ٹریک کو بلاک کر دیں گے۔ مظاہرین سے جانتے ہیں، آپ بتائے گا کہ چھٹا روز ہے اور ابھی تک آپ کے جو تینوں مطالبات ہیں وہ تسلیم نہیں ہوئے۔ چھٹا روز ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں تھا، آج آئے ہیں، انہیں ڈی سی نے بھیجا ہے بندہ، وہ کہتا ہے یہ اٹھاؤ دھرنا، 5 ماہ کی تنخواہیں بھی دیتے ہیں پھر جرا آپ کو آرڈر بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ایک ایم ایس کو ہٹاؤ، ہم کو 5 ماہ کی تنخواہ دو دن میں ہمارے آرڈر کرو، پھر ہم ادھر سے اٹھیں گے، نہ تو ہم ادھر ٹرین والے پاسے چلے جائیں گے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ اب جو ہے احتجاج کا دائرہ کار آپ لوگ وسیع کر رہے ہیں، 5 ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے سے کن مشکلات کا آپ کو سامنا رہا ہے؟ ہمیں بہت مشکلات کا سامنا، ہمارے گھروں کے میٹر کٹے گئے ہیں، ہماری چھت چھینی گئی ہے، کرائے رینٹ پہ گھر تھے وہ بھی چھینے گئے، ہم گھر رشتہ داروں کے گھر جا کے بیٹھنے کی بجائے روڈ پہ بیٹھ جائے تو مالی مشکلات، اور انہوں نے جو ہے انتظامیہ کو 24 گھنٹوں کا ٹائم دے دیا۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوئے تو کل 12 بجے ریلوے ٹریک پر پہنچ کے اسے جو ہے ریلوے ٹریک کو بلاک کر دیں گے۔ عامر یہ بتائے گا کہ 6 روز سے یہ لوگ جو ہے یہاں پر بیٹھے ہیں اور ایم ایس کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ایم ایس شیخ زید ہاسپٹل سے آپ کی بات ہو سکی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بالکل، 1 سے 2 روز قبل جو ہے میری ایم ایس شیخ زید ہاسپٹل ڈاکٹر آغا توحید سے میری بات ہوئی تھی، جس میں نے ان سے بات کی کہ یہ لوگ جو ہے پچھلے کئی دنوں سے آپ کے خلاف جو احتجاجی دھرنا دیے اور آپ کو چاہے کہ ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یا پھر جو اپنا موقف ہے اس حوالے سے سامنے آئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے میری طرف سے مکمل طور پہ حساس ہے اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے کسی بھی طرح کا موقف دینے سے جو ہے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ جبکہ اگر دیگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو ان میں جو ہے ڈپٹی کمشنر بھی یہاں پہ پہنچے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شیخ طاہر حسین وہ بھی یہاں پہ پہنچے تھے، اور ان کے خطاب کے دوران جو مظاہرین ہیں وہ اپنے مطالبات کے حق میں اسی طرح سے جو ہے نعرے بازی کا ایک سلسلہ جاری کرتے رہے اور انہیں جو ہے مجبوراً جو ہے خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جو نو منتخب صدر سردار فلک شیر خان گوپانگ اور جو نو منتخب جنرل سیکرٹری ہیں مرزا امین خان دیگر جو ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداران تھے وہ بھی یہاں پہ پہنچے اور اسی جگہ پہ نیچے بیٹھ کے وہ بھی مظاہرین کے ساتھ مل کر انہوں نے ان کے ساتھ مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی اور یہ بھی کہا ملازمین کی جانب سے ایم ایس کو فوری معطل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ عامر بھٹی بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خبر دیں گے آپ کو خانیوال سے، جہاں ریلوے لانڈھی پھاٹک مستقل بند کرنے پر اہل علاقہ کا احتجاج۔ ریلوے حکام کی جانب سے لانڈھی پھاٹک اور فرید آباد پھاٹک مستقل بند کر دیا گیا۔ ریلوے پھاٹک بند ہونے سے درجنوں بستیوں کے رہائشیوں کا راستہ بند ہو گیا، جبکہ مظاہرین نے شاہ حسین ٹرین اور گرین لائن ٹرین روک لی ہے۔ مظاہرین نے ریلوے ٹریک بلاک کر دی ہے۔ ریلوے حکام کے مذاکرات اس وقت جاری ہیں، مظاہرین میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ریلوے پھاٹک کھولنے کی اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ خانیوال میں ریلوے لانڈھی پھاٹک مستقل بند کرنے پر اہل علاقہ کا احتجاج۔ ریلوے حکام کی جانب سے لانڈھی پھاٹک اور فرید آباد پھاٹک مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا اور گھی نایاب ہو چکا ہے، جس کے بعد شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے ماجد کلاسرا۔ جی ماجد۔
बिल्कुल मुल्तान के बेशतर यूटिलिटी स्टोर पर घी के साथ साथ आटे की जो शॉर्टेज का सिलसिला जो है वो जारी है। हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर पर गरीब आदमी को जो वो रिलीफ देने के दावे किए गए थे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल की जो बात है, मुल्तान के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर ना घी मैसर आ रहा है और ना ही आटा शहरियों को मैसर आ रहा है। शहरी जो है वो यूटिलिटी स्टोर के चक्कर काट के जो वापस जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं जो घी के और इसके साथ साथ जो आटे के, ये मुकम्मल तौर पर खाली हैं। और जो शहरी जो है वो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर ना घी मैसर है ना आटा मैसर है। यहाँ पर हम आते हैं लेकिन हमें कोई चीज़ भी यहाँ पर मैसर नहीं आ रही। जो बेसिक हमारी ज़रूरियात है ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जो आटा है वो भी हमें दस्तयाब नहीं हो रहा। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। जी सर बताइएगा, आटा भी नहीं है, घी भी नहीं है, क्या कहेंगे, कितनी दफ़ा यहाँ? बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी दफ़ा आए हैं, आटा किसी वक्त भी मौजूद नहीं होता। जब भी चक्कर लगाते हैं आटा इधर नहीं होता, ना ही घी मिलता है। बाहर जाते हैं तो इतना महंगा आटा है शॉप्स पर कि इसलिए हम यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं। जब भी आटा कभी आ जाए तो इतनी लंबी लाइन होती है कि हमारे नंबर के करीब आटा खत्म हो जाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह शहरी का कहना था कि जब आटा आता है तो इतनी बड़ी लाइन होती है कि वो थोड़े से बिल्कुल आटा और घी नायाब हो चुका है। माजिद खलासरा, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट्स का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर का तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी, कारकर्दगी बेहतर बनाने का हुक्म दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर का शहर में कायम 10 क्रिटिकल बाजारों को मुकम्मल फाल करने का हुक्म भी दिया है। मजीद इस हवाले से अपडेट करेंगे अमजद मलिक। अमजद बताएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में आज स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट जो है उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें 40 से ज़्यादा प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने शिरकत की है। इसके साथ साथ जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अफसरान ने भी शिरकत की है कि बाकायदा तौर पर कि जांचा गया है कि इस साल के अंदर जो कि पिछले 12 दिनों के अंदर कितनी कारकर्दगी रही है, कितने फाइन्स किए गए हैं और प्राइस को कंट्रोल करने के हवाले से जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं उनकी क्या कारकर्दगी रही है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक साहब। आज हमारी डिटेल में मीटिंग हुई है। कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी मीटिंग ली थी सारे डीसीज की, कमिश्नर्स की। उन्हें जो इंस्ट्रक्शंस दी थी वो हमने कम्युनिकेट कर दी अपने मजिस्ट्रेट्स को। जहाँ तक चीनी की अवेलेबिलिटी का इशू है, मुल्तान में कोई ऐसा शॉर्टेज का इशू नहीं है। डेटा हम कंपाइल कर रहे होते हैं और बाकी जो प्राइसेस का है वो एक्स मिल प्लस ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से प्राइस डिटरमिन होती है। उस पर भी कल डिटेल में चीफ सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफिंग ली है और जितनी हमारे पास इम्पोर्टेड शुगर आई थी उसकी सेल वगैरह वो हम कर चुके हैं कंप्लीट। लेकिन जहाँ तक मजिस्ट्रेट्स की परफॉर्मेंस की ताल्लुक है, वो मैंने आज इनको इंस्ट्रक्शन दे दी है। कुछ मजिस्ट्रेट्स ऐसे हैं जो किसी और ड्यूटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो वहाँ पे टास्क उनको दिए गए हैं, तो उनको हमने स्पेयर कर लिया है। और स्पेशली इनको मैं इंस्ट्रक्शन दी है कि टाइगर फोर्स के हमारे जो लड़के हैं जो एक्टिव हैं फील्ड में, अभी हमारे पास तकरीबन 5-6 महीने हो गए, हमने उनकी असेसमेंट कर ली है कि कौन से लड़के जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको मैं डिप्यूट कर रहा हूँ इनके साथ, ताकि वो जाएं और फील्ड में जाके इनको सपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इसके अलावा मैंने ये भी एक इंस्ट्रक्शन दी है इनको कि 3 दिन जितने मजिस्ट्रेट्स हैं वो सिर्फ सिटी में कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारा सिटी मेट्रोपॉलिटन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, उसमें कोई इलाके ऐसे ना हो जो मिस हो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डिप्टी कमिश्नर कारकर्दगी बेहतर बनाने के अहकाम दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अमजद, आपने अपडेट किया। महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून कोट सुल्तान के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। जी जाहिद। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम नून कोट सुल्तान के ज़ेर एहतमाम आज महंगाई के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। इस के मुजाहरे के अंदर जो है पाकिस्तान नून के ज़िलाई सदर मार असलम सुबरा सूबाई हल्का PP 283 के सीनियर नायब सदर डॉक्टर खादिम हुसैन और दीगर जो यहाँ पर कारकुनान है और अहदेदारान है वो इस एहतजाज के अंदर शरीक है। मुजाहरीन का कहना है कि हुकूमत की जानब से मुसलसल बिजली कीमतों में इजाफे के साथ साथ खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं उसके अंदर मुसलसल कई फीसद तक इजाफा किया जा रहा है, जिसके वजह जो गरीब अफराद हैं उनकी जो परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर खादिम साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे बढ़ते महंगाई एहतजाज का? हम इस महंगाई की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट से PTI से इल्तमास करते हैं, मुतालबा करते हैं कि इस महंगाई को कंट्रोल करें। आए दिन आटा यहाँ कोट सुल्तान में बहुत शार्ट है, आटा नहीं मिल रहा है, चीनी का रेट ज़्यादा है, बिजली का रेट ज़्यादा है, गैस पिछले 3 महीने से बंद चली आ रही है और गैस का ना प्रेशर है ना ही गैस है। चूल्हे ठंडे हो गए गरीबों के। इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए और गैस का प्रेशर बहाल किया जाए। इसके अलावा चीनी शीनी जो शार्ट है, आटा शार्ट है,
उसको मुयस्सर किया जाए। हमारे कोट सुल्तान शहर में गरीबों का पुरसान हाल है। बिल्कुल गैस भी शार्ट है, इसके साथ आटा नहीं मिल रहा, जिस पर आज साहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि इंतजामिया मसाइल हल करे। जाहिर सरफराज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। विहाड़ी में थाना सिटी की हदूद में चोरी और डकैतियों की वारदातों का सिलसिला थम न सका। सराफा मार्केट में गुज़श्ता रात डकैती की वारदात पर दुकानदारों का एहतजाज। अपडेट करेंगे इस हवाले से हाफिज साले मोहम्मद। हाफिज बताएगा। मौजूद है विहाड़ी का सराफा मार्केट, जहां पे जो मसरूफ तरीन बाजार है, कारखाना बाजार है, लेकिन विहाड़ी के शहरी जो है वो इस वक्त विहाड़ी पुलिस से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं और उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। हमें रात के 9 बजे बाजार चल रहा है और हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, हमें पुलिस कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि मेहरबानी करें और पुलिस का गश्त भी होना चाहिए और बार बार होना चाहिए। ये नहीं कि एक दफ़ा आएँ और गश्त लगाकर चले जाएं, बाकी उसी फौरी तौर पर उनको जाते ही फौरी तौर पर इधर पुलिस जो है वो नहीं होती, तो डाकू आते हैं ले जाते हैं। और अगर ये हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो हम कारोबार कैसे चलेंगे, मुल्क कैसे तरक्की करेंगे। ये बताएं, वारदातों का सिलसिला थम नहीं सका। बहुत शुक्रिया हाफिज साले, आपने अपडेट किया। मुल्तान के मुख्तलिफ थानों में माले मुकदमा की गाड़ियां खराब होने लगी। सुपरदारी का अमल मुश्किल होने के बायस साइलिन के लिए अपनी गाड़ियों का हुसूल मुश्किल बन गया। इसी हवाले से यासिर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं। कोई कबाड़ खाना नहीं, मुल्तान के थानों में मौजूद माले मुकदमा की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें हैं। किसी का टायर नहीं तो किसी की टैंकी। माले मुकदमा की गाड़ियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। पकड़ी गई इन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर मट्टी की तहें जम चुकी हैं। कानूनी माहिरीन कहते हैं सुपुर्दारी का अमल इंतहाई मुश्किल है। लावारिस गाड़ियां बेशुमार है, हर थाने में कम से कम 500,000 गाड़ी इस वक्त मौजूद है, लेकिन काफ़ी क्योंकि उनकी जो वैल्यू है गाड़ियों की वो बड़ी कम हो चुकी है। कोई 12 कोई 15, वो जो ऑनर होता है वो कहता है जी हम इतना कुटन मराहिल है, हम अगर एप्लीकेशन दे तो इतनी वैल्यू नहीं है हमारी गाड़ी की। रोही ने मामला उठाया तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने थानों में मौजूद गाड़ियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहते हैं कि ज्यादातर मोटरसाइकिलें लावारिस हैं जिनकी नीलामी होगी। हमने एक प्रैक्टिस अपने थानों में शुरू कराई है जिसके अंदर हम तमाम थानों से रिकॉर्ड लेते हैं कि मोटर बाइक्स कितनी खड़ी हुई हैं और फिर उसको बाकी थानों में ज़िले के चेक करते हैं कि किसी थाने में मतलूब तो नहीं है। अक्सर चीज़ें इस तरह करके हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ये तमाम इसका एक तरीक़ाकार है कानूनी, जिनकी गाड़ियाँ मलकीती हैं वो जाके अपनी सपुर्दारी करा लेते हैं, फिर गाड़ी थाने से चली जाती है। मुल्तान के थाना सदर, थाना मुजफ्फराबाद, चौकी लारी अड्डा और थाना अल्पा समेत तमाम थानों में सैकड़ों गाड़ियां मौजूद हैं जिनका ना तो कोई वारिस है और ना ही देखभाल करने वाला। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर माहिर इमरान और मकसूद चौहान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी है। कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्तान में कोरोना के 5 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सरगोदा में भी कोरोना वायरस से 3 और डिजीखान में 1 हलाकत रिपोर्ट हुई है। मुल्तान निश्तर अस्पताल में कोरोना के 9 नए केसेस सामने आ चुके हैं। सरगोदा में मजीद 27 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए। डेजी खान में 15 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। रहीमिया खान में 5 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि बहावलपुर में मजीद 8 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। डेंगू की बात करेंगे। बहावलपुर में कोरोना के साथ साथ डेंगू के मरीज भी रिपोर्ट होना शुरू हो गए। विक्टोरिया अस्पताल में साल का पहला डेंगू मरीज रिपोर्ट हो गया, जिसे डेंगू वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। मोहम्मद इकबाल ने 15 रोज कबल इस्लामाबाद का सफर किया था। आपको अपडेट करे हैं, बहावलपुर में कोरोना के साथ साथ डेंगू के मर्ज भी रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं, जबकि विक्टोरिया अस्पताल में साल का पहला डेंगू मरीज रिपोर्ट हो चुका है। मियांवाली में MSD HQ डॉक्टर रफीक खान का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए दरख्तों को काटना शुरू कर दिया। DHQ अस्पताल के अहाते और कॉलोनी में दरख्तों को काट दिया गया। अपडेट करेंगे मियांवाली से अख्तर मजाज। अख्तर बताएगा। बिल्कुल, DHQ हॉस्पिटल के अहाते में जितने भी दरख्त थे उनकी कटाई करवाई गई और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जितने पुराने दरख्त पड़े हुए थे, जिनके तने पड़े हुए थे, वो भी गायब हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इन लकड़ियों को फरोख्त कर दिया गया है, जबकि इसके बरअक्स MSDHQ डॉक्टर रफीक खान का कहना है कि लकड़ी को महफूज किया जा रहा है, जबकि लॉ और कानून ये है कि MSDHQ किसी भी दरख्त की ना तो कटवाई करवा सकता है, ना ही इन लकड़ियों को वो फरोख्त कर सकता है। इस हवाले से ये जो सारा
प्रोसेस होता है DFO जंगलात जो करते हैं, एक तो पुरानी लकड़ी का तखमीना वो लगाते हैं कि इसको किस हद तक फरोख्त करना है, उसके अलावा जो कटाई के अथराइज हैं वो DFO जंगलात के पास होते हैं। इससे ये साबित हुआ कि MSDHQ जो है अपने इख्तियारात से तजावुज़ात कर रहे हैं और इख्तियारात ना होते हुए भी ये उन्होंने इकदाम उठाया है। उसके अलावा यहाँ सामने एक कॉलोनी है, DH कॉलोनी है जो हॉस्पिटल की, वहाँ पे काफ़ी सारे सफेदे के दरख्त थे, उनको काट दिया गया है और तकरीबन 3 से 4 ट्रक जो है लकड़ी के वो गायब हो चुकी हैं। जबकि MS साहब का कहना है कि लकड़ी को महफूज किया जा रहा है किसी गोदाम में। इस वक्त तक हमें कोई गोदाम नजर नहीं आया। जो DHQ हॉस्पिटल का अहाता है, यहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा कि ये पूरी ट्राली जो है इसको लोड किया जा रहा है। इस तरह की कई ट्रालियां लोड होके यहाँ से जा भी चुकी हैं। उसके अलावा ये जो पुरानी लकड़ी पड़ी हुई है, जो इस लकड़ी को काटा गया है, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि MS को इस चीज के अथराइज किसने दिए हैं, उसने किस हैसियत से ये लकड़ी कटवाई है। जबकि काट दिया गया है। बहुत शुक्रिया अख्तर, आपने अपडेट किया। भावल नगर के हॉकी के खिलाड़ियों का ख्वाब पूरा होने को तैयार है। जनूबी पंजाब में दूसरा ऑस्ट्रोटर्फ ग्राउंड आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना फैसल रहमान से, जो इस वक्त डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर मकसूदुल हसन जावेद के हमरा मौजूद हैं। जी राना फैसल, बताइएगा क्या कहना है स्पोर्ट्स ऑफिसर्स का? बिल्कुल, भावल नगर के नौजवान खिलाड़ियों की भी आखिर सुनी गई है। भावल नगर के जो खिलाड़ी जो है उनके लिए जो आस्ट्रो ट्रफ का जो मंसूबा जो है वो आपने आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है और आज जो है यहाँ पर डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर और तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है वो अपनी टीम के हमारा यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर जायजा ले रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है। भावल नगर के नौजवानों के लिए जो ये एक ख्वाब था, आज जो है ये हकीकत जो है धारने लगा है। मेरे साथ जो है डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर जो है मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं। सर बताइएगा कि इससे जो ये जो आस्ट्रो ट्रफ का जो मंसूबा है, इससे नौजवान खिलाड़ियों को कितना फायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बता दूं मैं कि ये आस्ट्रो टफ जो है ये वाकई आप जिस तरह आपने कहा ये बहावलपुर के लोगों की एक तोहफा है, एक नेमत है। ये सबसे पहले जो लगा था बहावलपुर में लगा, जनूबी पंजाब में सिर्फ एक आस्ट्रो टफ था जो बहावलपुर में लगा था। उसके बाद जैसे हमारी ये हुकूमत आई है, वज़ीर आला का बड़ा वीन है, वज़ीर आज़म हमारे वैसे स्पोर्ट्समैन हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये आस्ट्रो टफ भी सारे बिछाएँ और ग्राउंड भी सारे बनाएँ। इस तरह से हमारे ये तहसील स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पंजाब की तमाम तहसीलों में बन रहे हैं। इसी तरह आस्ट्रो टफ भी बहुत जगह पे लग रहे हैं, बहावल में लग रहा है, अब खानपुर में लग रहा है, मुल्तान में भी शुरू हो गया है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत कम अरसे में जितने भी स्पोर्ट्स के लोगों को जो सहूलियत ना वो मिलेंगी। पहले ये होता था कि ग्रास पे हम लोग खेलते थे, अब जितने भी मैचेस हैं कंपटीशन वो सारे आस्ट्रो टफ पे हो रहे हैं। क्योंकि आस्ट्रो टफ पे हो रहे हैं इसलिए हर इलाके में आस्ट्रो टफ का होना ज़रूरी है, ताकि लोग उसी पे प्रैक्टिस करेंगे तो आगे कारकर्दगी भी उसी पे देंगे। अगर घास पे खेलेंगे तो वहाँ जाके उनका वो स्टेमिना, वो चीज़ इस पे काम नहीं देती। इसका स्टेमिना अलहदा है, इसकी वो जो टेक्निक्स है वो अलहदा है। तो इसलिए जो लोग इस पे खेलेंगे वो आगे जाके कारकर्दगी भी बेहतर करेंगे। तो हमारे डी साहब ने भी आज विज़िट किया है, हमारे ये इंजीनियर कलीम साहब हैं, इनकी सरपरस्ती में हो रहा है, मैडम है हमारी ताहिर साहब हैं, ये सारे इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। ये हॉकी के मतलब खुद देखने वाले हैं, हॉकी खेलते भी हैं। तो इस तरह से ये हॉकी के लोगों की ही सरपरस्ती में हम ये कर रहे हैं। इसमें जो कमी पेशियाँ हैं वो भी हम इंशाल्लाह पूरी कर रहे हैं और ये मुझे उम्मीद है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक हम इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे इसको। जी बिल्कुल, ये मंसूबा खिलाड़ियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। राना फैसल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में चाइल्ड लेबर का शिकार बच्चों के लिए खुशखबरी, हुकूमत पंजाब की जानिब से इंसाफ प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से अलिशमा आसिफ। अलिशमा बताएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए और एजुकेशन हासिल करने वालों के लिए एक अच्छा इकदाम है, वो ये कि इंसाफ प्रोजेक्ट जो है हुकूमत पंजाब शुरू करने जा रही है। इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे बच्चों को, टीचर्स को, ये हम मेरे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील जो है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील सुल्ताना असलम राना साहिबा मेरे साथ मौजूद है। इनसे जान लेते हैं मैम इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होगा और इससे क्या होंगे। इंसाफ प्रोजेक्ट से हमारे उन बच्चों को एजुकेशन मिलेगी जो अभी तक हमारे स्कूल से बाहर हैं। इसमें टोटली जो फंडिंग है वो हमारी गवर्नमेंट कर रही है। मेरे पास 11 मरकज़ हैं और हर मरकज़ में एक स्कूल खोला जाएगा। इससे बहुत हद तक बेरोज़गारी का खात्मा भी होगा,
क्योंकि हर मरकज में एक स्कूल खोला जाएगा जिसमें हम स्टाफ देंगे, जिसमें हम क्लास 4 देंगे। जी बिल्कुल, हर मरकज में एक स्कूल खोला जाएगा, जैसा कि इन्होंने बताया कि इससे चाइल्ड लेबर को भी कम किया जाएगा। और दूसरी बात ये, जो लोग चाइल्ड लेबर को कम बेरोजगार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आपने अपडेट किया। बहावलपुर हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी अकरम खान बलोच कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार इलेक्शन का मामला इशू बना, लेकिन इंतखाबात एक बार फिर 16 जनवरी को करवाए जाएंगे। मजीद अपडेट्स जानेंगे महमूद जहीर से। जी महमूद, बताइएगा। आज ही पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के जो है इंतखाबात हुए, लेकिन बहावलपुर में इस बार ऐसा ना हो सका। कहा जाता है कि वकला बड़े पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से अपने इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा एजिटेशन पैदा हुई। एजिटेशन क्यों पैदा हुई, पहले तो इस बार हवाले से जानते हैं अकरम खान बलोच साहब से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार के। उसके बाद जानेंगे कि अब नए दोबारा से बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इलेक्शन कब होने जा रहे हैं। लेकिन पहले एजिटेशन क्यों हुई मलिक साहब, क्या वजह बनी? बहुत शुक्रिया आपका भाई। बात यह है कि इसमें जो एक अहम बात है कि हम पुरअमन, बहावलपुर के वकला जो हैं पुरअमन है, कभी ऐसा नहीं हुआ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यूं इस दफ़ा ऐसे हुआ है कि कुछ हमारे सीनियर जो लाइफ मेंबर बहावलपुर बार एसोसिएशन के लाइफ मेंबर थी, उनको भी लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। और जो पंजाब बार काउंसिल की तरफ से लिस्ट आई थी, उस पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात के में वो भी जो लिस्ट थी उसको भी शामिल न किया गया। और दूसरी अहम बात है कि कुछ ऐसे वकला थे, यंग थे, उनको भी जो वोट थे उनको भी महरूम कर दिया गया। उनके पास रसीदें थी, ड्यूज उन्होंने बहावलपुर बार एसोसिएशन को हो गया। उनकी वजह से आप लोगों ने कहा कि इलेक्शन में इनके नाम नहीं है, एजिटेशन पैदा होगी। अब इलेक्शन कब होने जा रहे हैं दोबारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहावलपुर? ये 16 तारीख को हो रहे हैं इलेक्शन। और अब उन्होंने पूरी जो इलेक्शन बोर्ड है उसको भी पंजाब बार काउंसिल ने चेंज कर दिया है। और उम्मीद है कि बहुत सीनियर हैं जो चेयरमैन हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसे तरीके से और इलेक्शन होंगे। 16 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। कौन होंगे बोर्ड के मेंबर और चेयरमैन जो है बोर्ड के? टोटल वोट कितने होंगे इस बार क्या पता? अभी तक लिस्ट नहीं आई पंजाब बार काउंसिल से। फिर वही मुझे खदशा है कि अगर लिस्ट नहीं आती, लॉ तो यही कहता है कि इसको 15 दिन पहले जो है अवेजा किया जाता है लिस्ट को, जो वोटर को पता चले कि मेरा वोट है या नहीं है। लेकिन ऐसे बार नहीं हुआ, ये कानून की खिलाफवर्जी है। लेकिन अभी तक ना लिस्ट नहीं आई, लेकिन डेट दे दी गई है। अगर लिस्ट नहीं आती, वही सबका लिस्ट पर होता है, तो फिर भी ये इंतखाबात डिस्प्यूटेड हो जाएगा। फिर से इंतखाबात डिस्प्यूटेड और एजिटेशन होने के खतरात ठीक है महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान पापा जॉन्स का पिज्जा खाने के ख्वाहिशमंद है, जबकि मुफ्ती अब्दुल कवी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान की सेहत और उम्र इस बात की उन्हें इजाजत नहीं देती कि वो फास्ट फूड खाएं। मौलाना की ख्वाहिशात में इजाफा होता रहा तो चाय पानी से भी महरूम रहेंगे। मजीद उनका क्या कहना था बताएंगे जुनेद अनवर। जुनेद बताएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी से मौलाना फजलुर रहमान को चाय पानी की ऑफर, मगर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पिज्जा खाने पर बजिद है। इस हवाले से मुमताज आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल कवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, आप कैसे देखते हैं, आप भी एक इल्मी शख्सियत है, मजहबी शख्सियत है, मौलाना जो है वो पिज्जा खाने के ख्वाहिशमंद है, क्या कहेंगे आप? सूरत हाल ये है कि मौलाना अगर अपने इल्म को देखते, अपनी शख्सियत को देखते और एक दीनी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, तो वो ये कहते हैं कि जी मैं माए ज़मज़म पीने के लिए हरम नबवी जा रहा हूँ या हरम मक्की में जा रहा हूँ, तो ये उनकी उम्र जो है वो ज़मज़म पीने की है, पॉप जॉन्स पीने की या खाने की नहीं है। तो बहरहाल मौलाना के अक़ल को और मौलाना के इल्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन दुरुस्त रखे। यही वजह है कि आज उनकी जमात के बहुत अहम तरीन लोग अपने इल्म और ज़िंदा ज़मीर होने की वजह से उनसे अलविदा हो चुके हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मौलाना अब दीनी फिक्र के नहीं रहे। मुफ्ती अब्दुल कवी की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर एक दफ़ा फिर तनकीद की गई है। उनका कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान को उनका जो सेहत है और ख़ास तौर पर वो दिल के अमराज में जो मुब्तला है, उसमें उनको पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल तनकीद की गई है। जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करें। कहरोड़ पक्का में डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन की कार्रवाई, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने अस्पताल का लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया। एक बार फिर से आपको बताएं कि अद्वियात की खरीदो फरोख्त, स्टॉक, अद्वियात और रजिस्टर्ड कब्जे में ले लिया गया। साबिक एमएस डॉक्टर इफ्तिखार अहमद 5 साथियों समेत जेल में बंद है। डायरेक्टर एंटी करप्शन के मुताबिक इन मुल्जिमान पर करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जाम साबित हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हकाइक को मंजर-ए-आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। डीजी खान से खबर देंगे आपको। डीजी खान में एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां एक्साइज दफ्तर में बंद कर दी गई। इस हवाले से मजीद
जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। डेरा गाजी खान में एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानब से गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के खिलाफ भरपूर तरीके से क्रैक डाउन का आगाज कर दिया गया है और बाकायदा तौर के ऊपर जो भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां शहर में चल रही हैं उनको एक्साइज दफ्तर में बंद किया जा रहा है। ईटीओ एक्साइज हमारे साथ मौजूद है, मुबशिर साहब इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर, क्रैक डाउन जो शुरू किया गया है इसके हवाले से अब तक कितना कार्रवाई अमल में लाई गई हैं और कहाँ कहाँ ये क्रैक डाउन जारी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने आज ये प्रोग्राम किया है। ये प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं डीजे खान के लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत पंजाब ने और सीएम बुज़दार साहब की एफर्ट के साथ पंजाब भर में अब 3 डिजिट्स नंबर लग रहे हैं जो इस्लामाबाद स्टाइल के हैं। बड़े पुरकशिश नंबर हैं। आप उनकी ई ऑक्शन के ज़रिए आप उस ऑक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं और ये अगस्त से ही हमने इसको स्टार्ट कर दिया हुआ है। और 2 महीने जो लास्ट मंथ के थे हमने बड़ी नबी तुली किस्म की मोटर चेकिंग की, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दी थ्रू मीडिया के ज़रिए भी जो हमारे दोस्त भाई हैं, ताकि लोग जो है रजिस्ट्रेशन के ट्रेंड की तरफ आएँ और अपने आप को एक जिम्मेदार शहरी बनाएं। जनवरी के स्टार्ट से जो है हमने इस कैंपेन में इजाफा किया है और अल्टरनेट डेज पर हम मोटर चेकिंग कर रहे हैं। यानी कि एक दिन हम करते हैं मोटर बाइक की अनरजिस्टर्ड के खिलाफ, दूसरे दिन हम टोकन टैक्स और बड़ी गाड़ियों के खिलाफ कर रहे हैं। आज भी हमने 4 गाड़ियां बंद की हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। मकसद लोगों को तकलीफ देना नहीं, लोगों को इस अवेयरनेस में लाना है कि आप ये गाड़ियां रजिस्टर कराएं और जिम्मेदार शहरी बने। गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, इन्हीं को मिलेगा, इन्हीं के पास आएगा, इसी पे सारी सहूलतें मिलती हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों की पकड़ जारी है। आशिर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में बलोचिस्तान की सकाफत के रंग झलकते हैं। मेहमानों की भी बलोची सज्जी से तवज्जो की जाती है। बलोची सज्जी का जायका कैसा है और कैसे तैयार की जाती है, बताएंगे मोहसिन मुल्क इस रिपोर्ट में। हम आपको बलोची सज्जी कैसे बनती है और किस तरीके से इसको बनाया जाता है इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। बकरा ज़िबा कर लिया गया यहाँ पर और बकरे को आप बड़े सारे तंदूर में रखेंगे, हम आपको आज की रिपोर्ट में दिखाएं। बलोची सज्जी के लिए पहले बकरे के गोश्त पर मुख्तलिफ देसी मसाला जात को महारत से लगाया जाता है। कुछ देर बाद पानी से धुले चावलों में मेवा जात को डालकर मसाला लगे बकरे के गोश्त के साथ अंगारों वाले तंदूर के अंदर इसे रखकर ऊपर से ईंटों या मिट्टी के लेप से मुकम्मल बंद कर दिया जाता है। सज्जी रखने के बाद अहम मरहला होता है इसको बंद करने का, और जब ये लॉक हो जाएगा भारी तरीके से तो अंदर आग के प्रेशर से जो गोश्त है वो अंदर तक पक जाएगा और फिर उसको खाने का मजा है। अंगारों वाले इस तंदूर को 3 से 4 घंटे बंद रखा जाता है। इस दौरान दोस्तों यारों की महफिल शुरू हो जाती है। परम दी औखी पत्ती धूणा दिन पेरे अती वाकिफ कहीं नहीं की थी घटी तू भी पूरा कर वे सांवल रो रो वे सामर वे सांवल। मेहरबानी थी, मेहरबानी। घंटों की दोस्तों की महफिल के दौरान सिज्जी भी पककर तैयार हो जाती है। सिज्जी जो है वो बनकर हमारे सामने आ गई है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत भी की गई थी और इसको खाने का तरीका भी अलग है। एक एक बोटी का जो रेशा है इसका अलग हो रहा है, यानी कि ये भरपूर तरीके से पकी है और इसकी लज्जत भी ज़बरदस्त है और इसको खाने का तरीका भी यहाँ के लोगों का इस तरीके से करके ऐसे करके इंतहाई मज़ेदार। अगर आप भी डेरा गाजी खान आए यहाँ पे आकर सब्जी ज़रूर खाएं। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन मुल्क, डेरा गाजी खान। रिपोर्ट आपने देखी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त